जी आए ਨੂੰ प्यारे विद्यार्थियों 12th क्लास ਦੀ इंग्लिश ਦੀ बुक A Rainbow of English lesson number 2 section A ਦੀ ਮਾਰਚ ਕਿੰਗ ਰੀਡਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਓ ਅਗਲਾ ਵੀਡੀਓ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 3। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਸਡਨਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਫੈਲ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਹਿਜ਼ ਨੈਕ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਨਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਵਾਇਲਨ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਲੀ ਔਰ ਓਵਰਸਾਈਜ਼ ਸ਼ਰਟ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟਿਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੀ ਆਡੀਅੰਸ ਬਿਗਨ ਟੂ ਲਾਫ। ਆਡੀਅੰਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਬਿਗਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਫ ਨੇ ਹੱਸਣਾ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਟ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸਾਰੀ, ਬਾਹਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਤੇ ਧੌਣ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਸਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਨ ਐਂਬਰੈਸਡ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਛੱਛੋ ਪੰਜ। ਐਂਬਰੈਸਡ ਮੈਨੇ ਬੰਦਾ ਝੇਪ ਜਾ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਭਰੇ ਛੱਛੋ ਪੰਜ ਵਿੱਚ ਫਿਲਿਪ ਫੋਰਗੋਟ ਵਟ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਪਲੇਇੰਗ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਲਿਪ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਧੁਨ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਸਟਾਪਡ ਕੰਪਲੀਟਲੀ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ, ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਪਦਾ, ਮੁਸੀਬਤ, ਸੰਕਟ। ਇਹ ਜੋ ਸੰਕਟ ਪਿਆ ਸੋ ਅਪਸੈਟ ਹਿਮ, ਉਹਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਦੈਟ ਹੀ ਰਸ਼ਡ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਜ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਾਇਲਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਫ ਮੈਨੇ ਉੱਤੋਂ ਸਮਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਰਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਅਰਥਾਤ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਸਲਕਡ ਇਨ ਅ ਡਾਰਕ ਕਾਰਨਰ, ਡਾਰਕ ਕਾਰਨਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੂੰਜੇ 'ਚ ਸੁੰਨਮਸਾਨ ਖੂੰਜੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਸਲਕ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ ਨਾ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਕੁੜੇ, ਰੁੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਖਿਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੜੇ ਪੁੱਜੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੁੰਨੇ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੇ ਖੂੰਜੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕੁੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੜਨ ਪੁੱਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਾਈਟਿੰਗ ਬੈਕ ਟੀਅਰਸ, ਫਾਈਟਿੰਗ ਬੈਕ ਟੀਅਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੀ ਮੰਬਲਡ, ਮੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਨੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੋਲਣਾ। ਗਲੂਮੀਲੀ, ਗਲੂਮੀਲੀ ਮੈਨੇ ਬੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬੁੜਬੁੜ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬੁੜਬੁੜ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਈ ਵਰ ਡੈਡ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਕਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਉੱਡਿਆ। ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ, ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਨੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟਸ ਵਰ ਸਰਵਡ ਆਫਟਰ ਦੀ ਕੰਸਰਟ, ਬੜਾ ਕੰਸਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਟ ਫਿਲਿਪ ਵਾਜ਼ ਟੂ ਬਿਜ਼ੀ ਟੂ ਹੈਵ ਐਨੀ, ਪਰ ਫਿਲਿਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਟੂ ਬਿਜ਼ੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਰੁੱਝਿਆ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਹੀ ਮਿੰਗਲਡ ਵਿਦ ਦ ਕਰਾਊਡ, ਮਿੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਐਜ਼ ਕੁਇਕਲੀ ਐਜ਼ ਹੀ ਕੁਡ, ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੋਪਿੰਗ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਮਿਸਟਰ ਐਸਪੂਟਾ, ਮਿਸਟਰ ਐਸਪੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਟੀਚਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਹੁਣ ਝਾੜ ਝੰਮ ਹੋਣੀ ਸੀ ਚੰਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਮਿਚ ਗਿਆ ਇਸ ਆਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਆਫਟਰ ਅ ਵਿਸਟਫੁਲ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ, ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਵਿਸਟਫੁਲ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਉਦਾਸੀ ਭਰੀ, ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਭਰੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੌਂਕੇ ਭਰੀ ਉਹਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ। ਫਿਲਿਪ ਵਾਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਸਲਿੰਕ ਆਊਟ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੋ ਸਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਡੁੱਬਣਾ ਜਾਂ ਡੋਬਣਾ, ਹੈਗਾ ਸਲਿੰਕ। ਸਲਿੰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਲਕਚਾਰੇ, ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਸਲਿੰਕ ਆਊਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਐਸਪੂਟਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਝਾੜ ਝੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਫਿਲਿਪ ਵਾਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਸਲਿੰਕ ਆਊਟ, ਫਿਲਿਪ ਹਾਲੇ ਬਾਹਰ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਖਿਸਕਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਵੈਨ ਅ ਬੂਮਿੰਗ ਵਾਇਸ, ਬੂਮਿੰਗ ਵਾਇਸ, ਵਾਇਸ ਮੈਨੇ ਆਵਾਜ਼, ਬੂਮਿੰਗ ਮੈਨੇ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਹਾਈਂਡ ਹਿਮ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ, ਸਕੌਫਟ, ਸਕੌਫਟ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ, ਸਕੌਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਿੱਚਰ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਘਿਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਿੱਚਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ। ਵੈਲ ਫਿਲਿਪ ਯੂ ਮੇਡ ਅ ਨਾਈਸ ਮੈਸ ਆਫ ਇਟ, ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਫਿਲਿਪ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਸਭ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਵਾਹਵਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ।
मतलब मेड जो कि इदा कहना हो ना, यू मेड अ नाइस मैस ऑफ इट। नाइस मैस होंगे खलारा, नाइस मैंने बड़ा वधिया खलारा पाया, अर्थात भी तू चंगा इस सारे प्रोग्राम चंगा जलूस कर देता, भी तू सत्यानाश कर देता, भी टांच मारी हूँ। स्कॉफ का मतलब ये होंगे भी टांच मारनी, टिचर करनी, घिरना ना देखना या बोलना। ठीक है। फिलिप टर्न, फिलिप मुड़िया एंड फाउंड हिमसेल्फ फेस टू फेस विद हिज ग्लोवरिंग टीचर। ग्लोवर होंगे घूरी वटनी, तो ग्लोवरिंग होंगे मतलब कि घूरी वटदा होया, खिजिया होया, टिचर करदा होया जिहड़ा बंदा मतलब कि उदा दे हाव भाव दे नाल अपने इस रूप दे टीचर मतलब इस रूप विच अपने टीचर दे नाल उहदियां अखां चार होईयां, फेस टू फेस मतलब कि अखां चार होईयां जदों मुड़िया। पिछों दी आवाज़ आई कि फिलिप तो चंगा वाहवा जलूस कढिया, ते जिहले मुड़िया ते देखिया पिछे उहदा टीचर ग्लोवरिंग मतलब कि खिजिया होया, घूरी वटदा होया उहदे वल देख रिहा सीगा। विद नो सिंपथी फॉर पुअर फिलिप, उस विचारे फिलिप ਲਈ बिना किसी हमदर्दी तो भी उत्ते कोई तरस नहीं किया उन्हें टीचर ने। मिस्टर एस्पूटा कॉन्टीन्यूड अनरीजनेबली, तो मिस्टर एस्पूटा जो सीगा वो अपनी जी अनरीजनेबली मतलब कि उन्हें धक्के वाली मतलब गल करी गया कि उन्होंने वो ऐसी तैसी करी गया। अनरीजनेबली बने भी विचारहीनता के नाल भी उत्ते उन्हें तरस नहीं किया, ये छोटा है बच्चा है चलो जो भी है। कहते नो रिफ्रैशमेंट्स फॉर यू, तेरे लिए कोई चाह पानी नहीं है। You shouldn't have spent the day playing ball। ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। You should have been preparing for the important work of the evening। ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੇਸਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ। You ought to be ashamed। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਉਹਦੀ ਝਾੜ ਜੰਮ ਕੀਤੀ। Philip hung his head। फिलिप ने अपना सिर नीवा किया, हंगैड में इधर लमकाता, सिर थले सुटिया, नीवा किया। साइड हैवली, औखे साह ले, एंड ट्रज्ड होम। ट्रज होंगे भी भारी मन के नाल थकिया होया ना, जिसले बंदा पैर घसीट के जाता औखा हो गए, तो पैर घसीटदा घर चला गया। द इंसीडेंट लैफ्ट सच एन इंप्रैशन। इंसीडेंट मैंने घटना, इस घटना ने ਉਹਦੇ ਤੇ ऐसी छाप छड्डी, सच एन इंप्रैशन मैंने ऐसी छाप छड्डी ऑन हिम ਉਹਦੇ ਤੇ that he always remembered it, कि उन्होंने यह घटना हमेशा याद रही। नहीं तो कई बार छोटिया मोटी गल्लां होंदियां थोड़ा चिर याद रहिंदियां, फिर बंदा भुल जाता, कहता उन्होंने याद नहीं है। पर इस घटना ने उत्ते इन्ना डूंगा प्रभाव पाया, छाप छड्डी कि उन्होंने यह हमेशा याद रही। ही नैवर अगेन ट्राई टू मिक्स वर्क एंड प्ले। हम बच्चों साडे लिए भी यह सबक है, कहते उस तो बाद उन्हें कदे भी खेड नूं ते कम नूं रलाउण दी कोशिश नहीं की। नैवर ट्राई टू मिक्स वर्क एंड प्ले, भी कम वेले कम खेड वेले खेड, दोनों का रलेवा करन दा उन्हें मुड़ के यतन नहीं किया। यह इन्ना तगड़ा सबक सी उहदे लई। बट दैट वाज नॉट द लास्ट टाइम दैट ही गॉट हिमसैल्फ इनटू ट्रबल विद मिस्टर एस्पूटा। पर कहते यह आखिरी समा नहीं सी जदों वह मिस्टर एस्पूटा दे नाल पंगा पिया हो, जदों उहदे नाल उहदे पेचे नाल लड़े हो। भी पेचे होर गल्लां तो भी लड़ते थे, भी यह तो एक कहते यह आखिरी मसला नहीं सीगा मिस्टर एस्पूटा दे नाल जिहड़ा सीगा। कहते वन डे एक दिन वैन फिलिप वाज 12, जदों फिलिप वाले 12 वरियां दा सीगा, both he and his teacher were feeling tired and cross। both he and his teacher मैंने वो आप ते वो टीचर दोनों, both मैंने दोनों were feeling tired and cross, थके हुए महसूस कर रहे थे। क्रॉस का मतलब होंगे बच्चों एडजेक्टिव है, इतने टायर्ड भी एडजेक्टिव है, क्रॉस जो एडजेक्टिव के तौर पर वरत्या जाए तो खिजे हुए थे किसी गल तो, कई ना बंदा उदा ही खिजिया होंगे, सतिया होंगे, तो निक्की जी गल होंगी फिर भड़क पैंदा है ना। तो कहते बोथ ही एंड हिज टीचर वर फीलिंग टायर्ड एंड क्रॉस, वो दोनों ही और टीचर भी तो आप भी थके हुए ते खिजे हुए महसूस कर रहे थे। सो दे गॉट इनटू अ हीटिड आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट में बहस, हीटिड मैंने बड़ी गहमा गहमी वाली, बड़ी गर्म जोशी वाली, बड़ी जबरदस्त, बड़ी जबरदस्त बड़ी गर्म जोशी वाली बहस के विचों फस गए। और ट्रिफल, ट्रिफल होंगी है सधारण जी गल, एवं दुखी तिक्की वाली गल, कोई गल भी जे तीजा बंदा सुने भी की गल होगी, काहते लड़ते पे हो, तो जो सुने तो हैरान हो जाए भी दसो यह गल लड़न वाली हैगी, यह गल बहस करने वाली है। सो ट्रिफल होंगे बच्चों बिल्कुल सधारण जी निगुणी जी गल, वो उपर उन्होंने बड़ी हीटिड आर्गूमेंट हो गई। एज अ रिजल्ट, नतीजे वजों, एज अ रिजल्ट का मतलब नतीजे वजों फिलिप रिटर्नड होम, फिलिप घर मुड़े आया कन्विंसड, तो इस गल का पक्का यकीन बनाते हुए दैट ही नो लॉन्गर वांटेड टू टेक म्यूजिक लैसनस, कि वो हुण बिल्कुल भी वो मन विच संगीत सीखण की चाह नहीं रह गई सी, कि उन्हें कहा हुण संगीत की क्लासां वो नहीं लेगा। ही डिस्कस द मैटर विद हिज
फादर उन्हें यह मसला जोड़ा है भी मैं मुड़ के हुण संगीत नहीं सीखना, उन्हें यह मसला जोड़ा सीगा मामला अपने पिता के नाल ਉਹਦੀ चर्चा की, डिस्कस किया, विचार किया। वैल कमेंटेड मिस्टर सौसा मैंने ਉਹਦਾ प्यो मिस्टर सौसा ने कमेंट किया, टिप्पणी की, कहने ठीक है, वैल इट सीम्स दैट यू डोंट वांट टू बी अ म्यूजिशियन, इवें जापदा है कि तू संगीतकार म्यूजिशियन नहीं बनना चाहता। फिर कहता इज देयर एनीथिंग एल्स, कि कोई यहो जी चीज़ है यू वुड प्रेफर टू बी, कि जो तू बनना चाहेगा, जिस तेरा रुचि है कि तू संगीतकार तो नहीं बनना चाहता, कुछ और है जो तू बनना पसंद करेगा, वुड प्रेफर टू बी। यस कहता हाँ, सेड फिलिप ने कहा आई वॉन्ट टू बी बेकर, मैं बेकर बनना चाहता। बेकर होंगे ने डबल रोटी, बिस्कुट, पैटियां, केक यह बनाते हैं, कहते मैं बेकर बनना चाहना, बेकिंग कर। मिस्टर सौसा आईब्रोज फ्लू अप, मिस्टर सौसा के वो पिता के जोड़े भरवटे से एकदम उपर नूं उठ गए, हैरानी, जो बंदा हैरान होंगे ना तो भरवटे उपर चकदा, कहता बेकर, उन्हें पूछा कि बेकर बनना चाहना है, कहते ही आस्क्ड इन सरप्राइज, उन्हें हैरान होके पूछा। यस अ बेकर, जी हाँ एक बेकर। फिलिप आंसर्ड फर्मली, फिलिप ने बड़ी दृढ़ता के नाल जवाब दिता। इफ दैट्स वॉट यू वॉन्ट, कहते जे यही कुछ तू बनना चाहना है, रिप्लाइड मिस्टर सौसा ने जवाब दिता, आई विल सी वट आई कैन डू टू गैट यू अ सूटेबल पोजीशन इन अ बेकरी, मैं फिर देखदा कि मैं तेरे लिए की कर सकदा ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ मैं ਤੈਨੂੰ एक बेकरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ, ਢੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ट्रेनिंग वास्ते ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾ ਸਕਾਂ। कहना आई विल गो एंड अटेंड टू इट राइट अवे, मैं हुणे जाना ਅਤੇ ਇਹਦਾ इंतजाम करना, ये अपने किसी जान पछाण वाले ਨਾਲ जो बेकरी ਜਿਹਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ करदा। एंड ही वेंट आउट ऑफ द हाउस, ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ मिस्टर सौसा। फिर की होया, कहते सून मिस्टर सौसा केम बैक, छेती ही मिस्टर सौसा वापस आए। फिर क्या, वेल सन, चंगा फिर पुत्रा, ही इनफॉर्म फिलिप, उन्हें फिलिप नूं दस्या, आई हैव बीन टॉकिंग टू चार्ली, मैं चार्ली नाल गल करदा रहा हाँ, दी बेकर, जो कि जद बेकिंग का काम है बेकर है, हिज शॉप इज़ अ फ्यू ब्लॉक्स अवे, वो हट्टी साढ़े तो कुछ ब्लॉक छड़ के परे हैगी है, एंड ही विल बी ग्लैड टू टीच यू हाउ टू बेक ब्रैड एंड पाइस, तो इस गल की उन्होंने खुशी होएगी कि तेनों यह गल सिखाने च उन्होंने खुशी होएगी कि डबल रोटियां ते पाइयां किद्दां बनाई जांदियां। ही इज़ एक्सपैक्टिंग यू टू नाइट एट 8:30, 8:30 मैंने अद्धा घंटा जो लंघ जाए, अर्थात 30 मिनट, 8 मैंने 8 तो टप जाए, अर्थात 8:30, 8:30 तो लगे राती 8 बजे, अज राती 8 बजे तेरी उड़ीक करेगा, एक्सपैक्ट यू, फिर तू तैयार थे चल जाए। गुड सैड फिलिप, कहते बहुत वधिया, फिलिप ने कहा, बट विद लिटल इंथुजियाजम, पर वो इस गुड विच इंथुजियाजम जोश बड़ा घट सी, मतलब उस वे तो तत्ता कहता सीगा ते बाद चो जोश ठंडा हो गया होना है, भी हुण शायद हुण वो इतना जोश नहीं सीगा, कहते विद लिटल इंथुजियाजम, पर बड़े घट जोश विच कहा, अच्छा ठीक है। मिस्टर सौसा पुट हिज हैंड ऑन फिलिप शोल्डर, मिस्टर सौसा ने अपने पुत्र फिलिप के मुंडे ते हथ रखा, एंड कॉन्टीन्यूड मोर सीरियसली, अते ज़्यादा गंभीरता के नाल अपनी गल जारी रखी, ते गल जारी रखते की क्या, कहते फिलिप आई हैव नोटिस दैट बेकरस आरंट ऑलवेज वेल एजुकेटेड, मैं गौर किया है कि जोड़े बेकर ने, जोड़े डबल रोटियां बनाते हैं, बिस्कुट केक बनाते हैं, वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे। आई बिलीव दैट इट वुड बी प्रॉफिटेबल, मैनू लगता है कि यह चीज़ बड़ी लाहेवंद रहेगी फॉर यू टू एजुकेट योर सैल्फ बियॉन्ड द लैवल ऑफ मोस्ट बेकरस, मैनू लगता है कि तेरे लिए गल लाहेवंद रहेगी कि तू अपने आप नूं ज़्यादातर जोड़े बेकर जिन्हें सिक्ख्यत होंगे ने उन्होंने तो वध अपने आप को सिक्ख्यत करें, परहैप्स यू विल दैन बी मोर सक्सैसफुल इन योर बिजनेस, इस तरह शायद तू अपने कामकाज में ज़्यादा कामयाब होएगा। फॉर दिस रीजन, इस कारण आई मस्ट इंसिस्ट, मैं इस गल पर जोर पावांगा, मैं इस गल की अड़ी करांगा, दैट यू कीप ऑन विद योर एजुकेशन ईवन दो यू स्टॉप टेकिंग योर म्यूजिक लैसन्स, कि बेशक तू संगीत दीयां क्लासां लैनियां बंद कर देवें, पर तू अपनी पढ़ाई जिहड़ी है वो जारी करता रहेगा। वैन यू हैव फिनिश्ड स्कूल, तो जो तू स्कूल खत्म कर लवें, पढ़ाई खत्म कर लवें, यू कैन बिकम अ फुल टाइम बेकर, फिर तू पूरा फुल टाइम बेकर जिहड़ा है बन सकता है, तू अपना हट्टी पा सकता है, अपना बिजनेस कर सकता है, तू बेकिंग के काम में आ सकता है। सो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों, इस कहानी का यह वाला सैक्शन जिन्होंने पार्ट 3 किया, तो तुसीं इसी तरह नेम के नाल उत्साह के नाल अपनी पढ़ाई करी चलो, तो अगले वीडियो तक लिए गुड बाय।
ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।